Good morning, student of class 4. How are you? I hope you all are well. So, student, today date is 20, chapter number 12, class 4th EBS, and the name of the chapter is Air, Water and Weather. We have completed the chapter. All the topics explanation I have given you. Now, what we are doing, recapitulate what we have done in our previous video. So student, in our previous video I start discussing keywords of this chapter with you, and a few of the things which I have already discussed with you, that is what is atmosphere, sea bridge, land bridge, evaporation. So these things we have discussed in our previous video. So atmosphere, sea bridge, land bridge and what is evaporation we have discussed. Now student, take out your book, open page number 74. Okay, take out your book student, open page number 74. Now today we will discuss humidity, condensation, what is precipitation and what is water cycle. So these are the keywords which I will discuss with you in the today video. First is humidity. See student, many of the student at the time of online classes, many of you are asking what is humidity. So very simple student, it is very simple concept is that the amount of water vapor, क्योंकि तुम लोग को पता है ड्यू टू द सनलाइट द वाटर इवापोरेट्स, इवापोरेशन कल भी बताई थी आप लोग को. ड्यू टू द सनलाइट व्हाट हैपेंस, द वाटर इवापोरेट, इट मींस the water change in the form of vapor. And how this happens student, this happen due to on heating. Due to the sunlight the water become warm and the boiling point of water is 100 degrees Celsius. So water start changing in the form of a water vapor. Is it clear? So that is known as what? Evaporation. Now student, once the water change into a vapor form, it means it change in the gas form. I explained you or I tell you that there are three states of water, that is solid, liquid and gas. Solid is the ice. When the temperature is very low, 0 degree or below 0 degree, then the water change in the form of a solid form. That form we say it as a ice. Okay, so student, what happens? Water vapor, it means it change in the form of a gas. So after that what happens? Due to this हम क्या कहते हैं, हमारे सराउंडिंग्स में भी बहुत वाटर है. हम वाटर को कहाँ देखते हैं? वी सी जनरली वी सी वाटर इन द वाटर बॉडीज, जैसे रिवर है, लेक है, पाउंड्स है, सी है. ओके, बट जो हमारे हमें जैसे हमें पता है ना कि हमारे चारों तरफ हवा है, ठीक है, एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, बट वी कांट सी इट, हम उसे देख नहीं सकते हैं, बट वी कैन फील इट. जैसे आपकी मम्मी आफ्टर वॉशिंग द क्लोथ्स उसे हैंग कर देती होंगी रोप पे, तो आप कभी कभी देखते होगे कि द क्लोथ स्विंग कर रहे हैं. तो क्या वो भूत है, गोश्त है? नो, दैट इज एयर. वो क्या है? एयर. ठीक है, सो वी कैन not see but we can feel the air. So when the water change in the form of a vapor, it become gas. और जो हमारे सराउंडिंग्स में रहती है, जो हमारे चारों तरफ हवा है, तो इसका मतलब बहुत सा वाटर एयर में भी प्रेजेंट है.
मतलब वाटर वाटर बॉडीज में नहीं है, बहुत सा वाटर एयर में भी घूम रहा है, प्रेजेंट है, ठीक है, और इन द फॉर्म ऑफ ए वाटर वेपर। लेकिन वो किस फॉर्म में है, ना तो सॉलिड फॉर्म में है, ना तो लिक्विड फॉर्म में, वो किस फॉर्म में है, वो गैसियस फॉर्म में, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर वेपर बोलते हैं। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर present in the air. Is it clear? So humidity is what? Humidity is the amount of water present in the air. What is humidity? Humidity is the amount of water present in the air. Is it clear? Now next is condensation. Condensation, what is condensation? See, the definition of condensation is just opposite of evaporation. Here what happens? The process in which water vapor changes into liquid. अब यहाँ क्या हुआ, वाटर वेपर जो है वो लिक्विड फॉर्म में फिर से आ गया। उस ओरिजिनल फॉर्म क्या थी उसकी, लिक्विड ही थी, हीट होने पे वो गैस फॉर्म में चला जाता है, वाटर वेपर बनता है। और वही वाटर अगर बहुत कूल हो जाए तो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिसको हम लोग आइस बोलते हैं। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज कंडेंसेशन? तो चेंज ऑफ वाटर वेपर, और ये वाटर वेपर कहाँ प्रेजेंट है, हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे चारों तरफ, क्योंकि हवा हमारे चारों तरफ है, ठीक है। तो जब वो वाटर वेपर जब क्या होता है, कूल हो जाता है, तो वो फिर से वाटर बन जाता है। कहाँ का वाटर वेपर, जो एयर में प्रेजेंट है। और एयर में वाटर वेपर कैसे आया था, ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। इट मीन्स दैट फॉर ऑल दिस वाटर साइकिल हमने पढ़ी, वाटर साइकिल हो रही है, हु इज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज टाइप्स ऑफ चेंजेस, जो वेदर में इतनी चेंजेस हो रही हैं, हु इज ए रिस्पॉन्सिबल, इट मीन्स सन, the light of the sun. Is it clear? So here water vapor change in the form of a water, and how it happens, it happens on cooling, it happens on cooling. अब क्वेश्चन अराइज होता है, किसकी कूलिंग, किसकी कूलिंग, तो आंसर इज वाटर वेपर की। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज वाटर वेपर ऑन कूलिंग। क्वेश्चन अराइज हुआ किसकी कूलिंग, वाटर वेपर की। एंड व्हेन द वाटर वेपर कूल्स, देन द फाइनल रिजल्ट जो आपको मिला वो क्या मिला, वाटर। फाइनली आपको क्या मिला, वाटर मिला, ठीक है। सो दैट इज कंडेंसेशन। नाउ नेक्स्ट इज अच्छा, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या है, वही जो आपकी वाटर साइकिल है, वाटर साइकिल बता देता हूं, उसी से रिलेटेड आपकी आ जाएगी। ठीक है, अब देखो बेटा, वाटर साइकिल। ओके, व्हाट्स हैपेन, सी दिस इज द sun. What is this? This is sun. So okay, this is sun, and when the light of the sun falls on the water, देखो आज ऑलरेडी मैंने ये टॉपिक तुम्हें पिक्चर बना के, डायग्राम बना के पूरा एक्सप्लेन किया है। तो हम लोग की वर्ड्स पढ़ रहे हैं, एक रिकैप्चुलेशन कर रहे हैं जो हमने चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। तो टुडे आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ ए डायग्राम, आपको बस एक आपको दोबारा से आपको मैं इसको रिवाइज करा देता हूं।
जिससे जो भी आपने पढ़ा होगा एक बार वो फिर से आप रिकैप्चुलेट कर लो, ठीक है, फिर रिवाइज कर लो। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले बाय द सन, सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो वाटर साइकिल में प्ले हो रहा है वो क्या है, सन का है। इज इट क्लियर? एंड द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस विच टेक प्लेस इन वाटर साइकिल, दैट इज दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस, मतलब दो ऐसी कौन सी क्रिया हो रही है, प्रतिक्रिया हो रही है, ठीक है, जो पूरी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। दैट इज टू आर, वन इज इवापोरेशन and another is condensation. One is evaporation, another is condensation. These both process are opposite to each other. Evaporation take place on heating, on heating, and this heating is done by the sunlight. This heating is done by the sunlight, due to the light of the sun. And condensation, when it take place on cooling. Okay, so these are the two very important process which play a very important role in this water cycle. Is it clear? Now let do once again what is water cycle. Now student, what's happened when the sunlight falls on the water? So due to this light, what happens, it, due to the heat of the sunlight, water start evaporate. It means the water start changing in the form of a water vapor. Due to the heat of the sunlight, when it falls on the surface of a water, then water changes into water vapor. And now next point student, when the water change into a water vapor, then it weight become very less. ठीक है, जब वो गैस फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो उसका वेट क्या हो जाएगा, बहुत हल्का हो जाएगा. देन व्हाट्स हैपन, दिस वाटर वेपर राइजेस अप, ये क्या ऊपर की ओर राइज करने लगेगा. ठीक है, दिस वाटर वेपर राइजेस अप, क्योंकि इसका वेट क्या है, जब गैस फॉर्म में, अगर लिक्विड फॉर्म में वाटर हो या तो आइस फॉर्म में वाटर हो तो उसका वेट बहुत ज्यादा होता है. इज इट क्लियर? अगर दो बकेट आपको बड़ी बड़ी दे दी जाए कि लो इस बकेट को उठा के वहां रखा हो सकता है आप मना कर दो, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा. ठीक है, तो जब गैस फॉर्म में वाटर होता है तो उसका जो वेट होता है वो बिल्कुल लेस होता है. दैट इज द रीजन व्हेन इट चेंज इन द गैस फॉर्म, वाटर वेपर इसका जब बन जाता है, इट बिकम्स वेरी लाइट एंड इट राइजेस अप. ठीक है, हल्का होने के कारण ये क्या ऊपर की ओर उठने लगता है. नाउ आफ्टर, नाउ व्हाट्स हैपन स्टूडेंट, जब ये ऊपर की ओर वाटर वेपर राइज करने लगता है एंड व्हेन इट कम इन द टच ऑफ द कोल्ड एयर. ठीक है, किसके टच में आ जाता है, कोल्ड एयर के टच में आएगा. जब कोल्ड एयर के टच में आएगा तो जो वाटर वेपर है वो भी तो ठंडा होगा. तो यही तो कंडेंसेशन है. जब वो कोल्ड एयर के टच में आ गया वो वाटर जो राइज करके ऊपर जा रहा था, तो इससे क्या हो गया, उसकी कूलिंग हो गई. तो मतलब क्या हो गया, वाटर वेपर अगेन चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वाटर. तो यही टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर जो है ये आपस में ज्वाइन हो जाते हैं. ठीक है, बहुत हाइट पे जाके ये होता है, इसलिए ये आपस में क्या ज्वाइन हो जाते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, क्लाउड्स फॉर्म करते हैं. क्या फॉर्म करते हैं बेटा, दे फॉर्म द क्लाउड्स. ठीक है, व्हेन द ड्रॉप ऑफ वाटर बिकम वेरी बिग, और जब इनका वेट बहुत हैवी हो जाता है तो ये जितना भी वाटर ऊपर जाके जिसने क्लाउड बनाया वो वाटर लैंड से ही तो गया था.
लैंड से ही तो वो वाटर ऊपर गया था जिससे क्लाउड फॉर्म हुए. नाउ द वाटर अगेन कम बैक टू द लैंड. ये एक साइकिल की तरह चल रहा है. ये प्रोसेस क्या कंटिन्यूअस है, सर्किल की तरह कंटिन्यूअस है, क्लॉकवाइज. अगर हम ऐसे हाथ करते हैं तो उसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं. क्लॉकवाइज ये प्रोसेस क्या है? दिस प्रोसेस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. अब जब इतना ज्यादा इन ड्रॉप्स का वेट ज्यादा हो जाता है, इट बिकम सो हैवियर, तो ये क्लाउड से किस फॉर्म में आने लगते हैं? रेन फॉर्म में. इसलिए बारिश होती है. एंड अगेन द वाटर फिल्स इनटू द वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, पाउंड्स, लेक्स, सी, ओशंस. तो यही प्रोसेस क्या कंटिन्यूस होती रहती है. ठीक है. फिर उसके बाद इसी चैप्टर में मैंने आप लोग को हेल पढ़ाया, स्नो पढ़ाया, ये सब चीजें पढ़ाई ना. जब क्लाउड्स के अगल बगल की जो एयर जो होती है बहुत कूल होती है, देन व्हाट हैपन, द कंडीशन अराइजेस दैट दीज स्मॉल ड्रॉप जो स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स ने जो मिलके क्लाउड्स बनाए हैं, अगर उनके अगल बगल की हवा अगर बहुत ठंडी है, मैक्सिमम ऐसा कहाँ होता है? माउंटेन्स एरिया में. मैक्सिमम आपको ऐसा देखने के लिए कहाँ मिलेगा? माउंटेन्स एरिया में. प्लेन्स एरिया में नहीं मिलेगा. ठीक है. उतना जितना माउंटेन्स एरिया में क्लाइमेट क्या होता है, बहुत वेदर क्या होता है, बहुत कोल्ड होता है. इज इट क्लियर? सो दीज स्मॉल टाइनी ड्रॉप्स जिन्होंने मिलके क्लाउड्स बनाए थे, अब देखो क्या होगा. जैसे वाटर ड्रॉप्स बहुत हैवियर होते हैं तो इट कम डाउन इन द फॉर्म ऑफ ए रेन. लेकिन इफ अराउंड द क्लाउड द एयर इज वेरी कूल, बहुत कोल्ड एयर है, इसका मतलब उसका टेम्परेचर जीरो हो गया या जीरो से भी लेस हो गया. तो अब यही जो स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर है, ये क्या होंगे? फ्रीज हो जाएंगे. फ्रीज हो जाएंगे मतलब जम जाएंगे. जैसे आप रेफ्रिजरेटर में वाटर रखते हो फ्रीजर के अंदर और 2-3 घंटे बाद देखते हो तो देखते हो उसकी बर्फ बन चुकी होती है, वो सॉलिड हो जाता है, हार्ड हो जाता है. ठीक है. तो इन द सेम मैनर जो स्मॉल स्मॉल ड्रॉप ने क्लाउड्स बनाए थे वो ज्यादा कोल्ड होने के बाद फ्रीज हो गए, वो जम गए. तो किस फॉर्म में जम गए? आइस बन गया उसका. ठीक है. तो जो वाटर नीचे से लैंड से ऊपर जाता है, क्लाउड्स बनाता है, तो इट कम ऑन द ग्राउंड इन डिफरेंट फॉर्म. ठीक है. जो वाटर नीचे से जा रहा है, जाने का तो एक ही मेथड है कि सन की लाइट से वो इवापोरेट हो रहा है. जाने का तो सेम मेथड है कि सन की लाइट से इवापोरेट हो रहा है. ठीक है. लेकिन स्टूडेंट, हर जगह का क्लाइमेट आने के तरीके क्यों उसके चेंज हो जाते हैं? क्योंकि हर जगह का क्लाइमेट एक जैसा नहीं है. जम्मू कश्मीर, जो हिमालयन रेंजेस, अच्छा तुम लोग को नहीं, वो तो क्लास 5 को बताई है. तो तुम लोग शॉर्टकट में ये जान लो कि जो हिल्स एरिया, माउंटेन्स एरिया होता है, वहां का क्लाइमेट बहुत ठंडा होता है. तो जहां बहुत ठंड होगी तो वहां एयर भी बहुत कूल होगी. और जहां कोल्ड एयर इतनी ज्यादा चलेगी तो ये जो क्लाउड्स के अगल बगल जब कोल्ड एयर हो जाएगी तो वहां का वाटर रेन, जरूरी नहीं है कि रेन के ही रूप में नीचे आए. तो जो वाटर आपके लैंड से ही ऊपर गया, अब उसके आने के जो तरीके हैं वो अलग अलग हो जाते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन द वेदर, टेम्परेचर. इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. इज इट क्लियर? क्योंकि देखो, मैक्सिमम बर्फ आप लोग सुनते होगे कि स्नोफॉल स्नोफॉल. कभी आप लोग ने सुना है प्लेन एरिया में, हॉट एरिया में स्नोफॉल होता है? आपने सुना है राजस्थान में बहुत बर्फ गिरी, पूरे डेजर्ट एरिया बर्फ से भर गया? नहीं सुना है ना. देखो, ये जो वाटर नीचे से जाता है वो तो वाटर वेपर में ही फॉर्म में जाता है, बट व्हेन इट कम्स फ्रॉम द क्लाउड इट कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स में आता है. या तो हेल के रूप में आएगा, या तो स्नो बन के नीचे चला आएगा. ठीक है. या तो रेन भी होगी. ऐसा नहीं है कि पहाड़ों में रेन नहीं होती है, होती है. रेन फॉर्म में भी आएगा. तो फिर उसके नीचे, फ्रॉम क्लाउड से नीचे के आने के मेथड चेंज हो जाते हैं. एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? इसका रीजन है जिस हर जगह के अलग अलग टेम्परेचर है. ठीक है. जैसे ऐसा नहीं है, जैसे हम लोग यूपी में रहते हैं, वाराणसी हॉट एरिया होता है, तो हॉट एरिया का मतलब ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ कभी कोल्ड होता ही नहीं है, ठंड नहीं पड़ती, पड़ती है. लेकिन हम फिर भी इस एरिया को हॉट एरिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ अगर 12th मंथ में मैक्सिमम टाइम देखा जाए तो गर्मी ही होती है.
मैक्सिमम टाइम, अगर मैक्सिमम 12 महीने में हम लोग देखें तो हमेशा मैक्सिमम सबसे ज्यादा क्या होती है, यहाँ गर्मी होती है, इसलिए से हॉट बोलते हैं, हॉट एरिया। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ठंड में ठंड नहीं पड़ती है, पड़ती है, नवंबर दिसंबर जनवरी में ठंडी पड़ती है ना। सो इन द सेम मैनर, जैसे माउंटेन्स एरिया होते हैं, माउंटेन्स एरिया में भी हॉट होते हैं, माउंटेन्स एरिया में भी समर के समय काफी गर्मी होती है। ऐसा नहीं है कि वो कोल्ड रीजन है तो ऑल द टाइम माउंटेन्स पे कोल्ड ही है, नहीं, वहां भी होते हैं गर्म। लेकिन मैक्सिमम टाइम अगर 12 मंथ्स को कंसीडर करें तो मैक्सिमम टाइम जो टेम्परेचर होता है वो लेस ही होता है, इसलिए हम लोग उनको माउंटेन्स एरियाज को कोल्ड रीजन्स बोलते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। सो अब वाटर नीचे से तो ऊपर वेपरी फॉर्म में गया, लेकिन ड्यू टू डिफरेंट इन द वेदर कंडीशन ऑफ डिफरेंट प्लेस, हर जगह का जो वेदर कंडीशन है वो अलग अलग है। ठीक है, दैट इज द रीजन नाउ व्हेन इट कम्स फ्रॉम द क्लाउड, जब वो क्लाउड से वाटर नीचे आता है तो उसके आने के जो वाटर विच फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड्स दैट चेंज इन डिफरेंट फॉर्म्स। रेन है तो वो लिक्विड के रूप में आ रहा है, ठीक है, स्नो है, ये है तो स्नो क्या नीचे आके आइस जम जाती है, हेल आ रहा है तो इसमें क्या है, सॉलिड फॉर्म में आ रहा है। तो यही सब डिस्कस किया है। फॉलिंग ऑफ वाटर इन एनी फॉर्म, कहां से, फ्रॉम द क्लाउड्स, नीचे से वो वेपर ही फॉर्म में जा रहा है, लेकिन जब क्लाउड से रिटर्न होके आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेन फॉर्म में आ रहा है, लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, सो फॉलिंग ऑफ द वाटर इन एनी फॉर्म दैट इज हेल, स्नो, रेन एक्स्ट्रा ऑन द अर्थ दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। ठीक है, कि व्हेन इट इज कमिंग फ्रॉम द क्लाउड इट कम इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में वो आ सकता है, लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, सॉलिड फॉर्म में आ रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, एंड इवन नाउ इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन यू आस्क इन ऑनलाइन डाउट सेशन एंड अगेन आई विल एक्सप्लेन। ओके, so this is a keyword we have discussed, all the keywords we have discussed: atmosphere, sea bridge, land bridge, evaporation, humidity, condensation, what is a precipitation। ओके, अब प्रेसिपिटेशन का माइंड में एक कॉन्सेप्ट बना लो कि वाटर लैंड से इवापोरेट होके ऊपर जा रहा है, लेकिन व्हेन इट इज कमिंग इन फ्रॉम द क्लाउड्स इट कम्स इन डिफरेंट फॉर्म में, वो अलग अलग फॉर्म में आ रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेनी फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज प्रेसिपिटेशन, और प्रेसिपिटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, वेदर। ठीक है, जहां हॉट एरिया होंगे और जहां कोल्ड एरिया होंगे, तो कोल्ड एरिया में तो बहुत वहां ठंड होगी तो वहां स्नोफॉल भी बहुत होती है। ठीक है, सो ऑल दिस आई हैव एक्सप्लेन। नाउ स्टूडेंट let discuss some of the things to remember. Point keyword I have already discussed with you of this chapter. Now student we will discuss the keywords. तो हो गया things to remember. These are also a very important point. This is a complete summary of the chapter. Only 1 2 3 4 5 6 7 highlighted sentences are given in the book, and read these sentences, and if you think you are able to understand all these points which are written in things to remember, it means your concepts are clear. It means your concepts are clear. Now see the first point, things to remember. First point, the heat of the sun causes change in weather. This is the most important point. This is the point with which I start this chapter. यही वो पॉइंट था जिससे मैंने अपने चैप्टर को स्टार्ट किया था। फर्स्ट पॉइंट, द हीट ऑफ द सन काजेस चेंज इन वेदर। ठीक है, वेदर में जितनी भी चेंजेस होती हैं, कहीं का कोल्ड वेदर होता है, कहीं बहुत हॉट होता है, सो वेदर की जितनी भी चेंजेस हैं इट डिपेंड्स अपॉन द हीट ऑफ द सन। ठीक है, और मैंने इसमें तुम लोग से छोटी सी डिस्कशन भी की थी
कि इफ यू सी द मॉडल ऑफ योर अर्थ, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर मैंने डिस्कस किया था, और हमारी जो अर्थ है वो 23 पॉइंट डिग्री के एंगल पे हल्की सी टिल्टेड है। और मैंने तुम लोग को थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जो रोटेशन हो रहा है हमारे प्लेनेट अर्थ का अराउंड द सन, जिसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है, जिसे रिवॉल्यूशन बोलते हैं, सो दैट रिवॉल्यूशन इज वेरी, ड्यू टू दैट रिवॉल्यूशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए सीजन्स आर फॉर्म। ठीक है, जब अर्थ का कोई ऐसा पार्ट जो सन के बहुत क्लोज आ जाता है तो वहां कैसा क्लाइमेट होगा, बिल्कुल गर्म होगा, हॉट होगा। और ऐसा पार्ट जहां सनलाइट डायरेक्टली नहीं जा रही है वो पार्ट क्या होगा, वो बहुत कोल्ड होगा। ठीक है, मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था चैप्टर स्टार्ट करने में, क्योंकि इसे बहुत ज्यादा डिटेल में तुम्हें चैप्टर 9 में पढ़ाया था आवर अर्थ वाले में। ठीक है, सो दिस फर्स्ट पॉइंट, द हीट ऑफ द सन काजेज change in weather, so that is a very this is the most important point, because our earth is taking round of the sun, or due to the round of the sun what happens student, different seasons are formed। ठीक है, जैसे विंटर है, समर है, मॉनसून सीजन भी आता है, ऑटम भी आता है। सो why these seasons are formed, these seasons are formed because our planet earth is taking the round of the sun। नॉर्थ पोल साउथ पोल के बारे में तुम्हें थोड़ा सा बताया था, यहाँ बहुत ज्यादा क्या ठंड होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ सनलाइट उतनी नहीं जाती है। इज इट क्लियर, दिस इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच रिसीव मिनिमम सनलाइट। इज इट क्लियर, सो फिर नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, इट हीट्स लैंड एंड वाटर, लैंड गेट्स वार्मर सूनर देन वाटर। देखो मैंने आपको बताया बेटा, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद थिंग्स टू रिमेंबर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है, इट सन की लाइट के बारे में बात कर रहा है कि इट हीट्स लैंड एंड वाटर। ठीक है, सन की लाइट लैंड पे भी पड़ती है और वाटर पे भी पड़ती है, और सबसे जल्दी वार्म कौन होता है, लैंड होता है। ठीक है, और वाटर को वार्म होने में ज्यादा टाइम लगता है। इस पॉइंट से तुम्हें दो चीजें याद आ रही होंगी, इसी पॉइंट के बेस पे सर ने आपको 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स पढ़ाई थी, दैट इज सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। देखो, क्योंकि पॉइंट्स थिंग्स टू रिमेंबर आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर। सिंगल पॉइंट दिया, इट हीट्स लैंड एंड वाटर, एंड लैंड बिकम गेट वार्मर सूनर देन वाटर। लैंड जो है वाटर से जल्दी वार्म हो जाता है। और सिर्फ एक सेंटेंस से हमने क्या कॉन्सेप्ट इसी के बेस पे आपको बताया था, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। इज इट क्लियर, नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट। फोर्थ पॉइंट इज चेंज ऑफ वाटर टू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। ठीक है, दिस इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन, इसकी डेफिनेशन तो टोटली लर्न कर लो, डोंट क्रैम इट, लर्न इट बाय यूजिंग योर थिंकिंग पावर। इवापोरेशन मीन्स ऑन हीटिंग, एंड heat, if your water is getting heat from where, due to the sunlight, due to the sunlight, and condensation on cooling। is it clear, so on heating what's happen, water heat हो रहा है तो it change into a water vapor, gaseous form, and on cooling means now water vapor which is in the form of a gas, it cools and again it change in the form of a water, that is condensation। so this point is given in things to remember, because I already explained you that the whole water cycle process depend upon the whole water cycle, which is the continuous process
इन द नेचर में जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इट डिपेंड्स अपॉन ओनली दीज टू प्रोसेस, दैट इज इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। Is it clear? So student, I hope you are able to understand. Thank you.